Greetings students, how are you? Welcome back to our channel Nagin Best Digital Learning. Now what were we doing? We were doing the chapter The Ghat of the Only World by Amitav Ghosh. And let me just show you the picture. Who's this? He is Amitav Ghosh. And he was writing a story which his friend Aga Shahid Ali had requested him to write about his life when he dies. Okay, so this he is Shahid Ali. Okay, now let us move on to the part 2 of the chapter. Now children, we get to know that Shahid Ali, who is Amitav Ghosh writer's friend, is actually suffering from cancer. Okay, and we got to know where they live. They live in Brooklyn. Okay, and the way he suffers and what he does after that. Okay children, now let us carry on with the part 2 so that it is so that we can carry on with the chapter. Okay, so where were we studying from? We were starting the chapter from page number 56. Okay, page number 56. And one afternoon, from where we were starting from this place. Okay, let us. Okay, then he says, one afternoon, the writer Suketu Mehta, who also lives in Brooklyn, joined us for lunch. अब क्या हुआ? एक और उनका फ्रेंड कौन था? सुकेतु मेहता. He also joined them for lunch. Together we hatched a plan for an adda. Hatched a plan, children? Hatched a plan. Hatched means had a secret plan. ठीक है? They had a secret plan. Okay. And what is adda? Adda is a Indian word, children. ठीक है, जहाँ पर हम फ्रेंड्स को बोलते हैं ना, चलो अपने अड्डे पे चलो, जहाँ पर हम प्लेस जहाँ पर हम चिल आउट करने जाते हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड अड्डा. ओके, by definition, and now he's giving the definition of adda, a gathering that has no agenda. और वहाँ पर उनकी गैदरिंग होती थी जिसका कोई प्रॉपर एजेंडा नहीं था. बस वो किस चीज़ के लिए मिलते थे? अपने पार्टीज़ के लिए, अपने फन लविंग के, क्योंकि शाहिद को क्या था? कैंसर था. एंड इट वाज व्हाट डू यू कॉल इट वाज नॉन रिकवरेबल. ठीक है. Then other than conviviality, ठीक है, conviviality means a quality of being friendly, and lively. ठीक है, और कोई एजेंडा नहीं था. They wanted just to party as per the friends. Okay, from time to time other writers joined us. अब वो बोलता है from time to time. क्या हुआ? अदर राइटर्स ऑल्सो जॉइंट. अब जैसे पहले कौन था? मेहता, अमिताभ घोष आया, अब सुकेतु मेहता आ गए थे, राइट. On one occasion, a crew arrived with a television camera. What is a crew? A crew is a group of people. They arrived with the camera. Shahid was not in least bit put out. I'm so shameless. I just love the camera. बोलते not least bit put out मतलब वो नहीं होता कि they were shy about the camera. He was not put out. क्यों? क्योंकि चिल्ड्रन ये बहुत फेमस राइटर्स थे. ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या हुआ? These people, they who belonged to cameras, what do you call it, who are actually journalists, they wanted to know about them. So he's like, I'm so shameless कि I just love the cameras. तो वो कोई डरे वरे नहीं या गुस्सा नहीं करा कि go from here. So without any hesitation, he liked being photographed. Okay, so he liked being photographed. Shahid had a sorcerous ability to transmute the mundane into the magical. Sorcerous ability, children. Sorcerous ability. Sorcerous means a person who claims or is believed to have magical power. ठीक है, तो Shahid had some magical power. ठीक है, to transmute means to change the form.
To change the form, the mundane means lacking interest into magical. बोल रहे कई कई बार जो चीज़ें बहुत बोरिंग हो जाती थी, बट शाहिद के अंदर इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ थी चिल्ड्रन कि वो कोई भी बोरिंग चीज़ को उसका चेंज कर देते, फॉर्म कर देते थे, और इट वुड बिकम वेरी इंटरेस्टिंग. सो दैट इज़ व्हाट सॉसरस मीन्स. सॉसरस मीन्स अ पर्सन हु क्लेम्स और इज बिलीव टू हैव एन मैजिकल पावर. ठीक है. Once I accompanied Iqbal, his brother, and Hina, his sister, on a trip to fetch him home from हॉस्पिटल. तो अब क्या हुआ, एक बार ये लोग अकम्पनी करा, किसने, अमिताभ घोष ने, इसके जो भाई बहन थे, जो सिबलिंग्स थे, ठीक है, वो किसको लेने गए थे, किसको लेने गए थे, शाहिद को लेने गए थे, शाहिद अली को लेने गए थे. कहाँ, हॉस्पिटल में. कि ऑब्वियसली ही वॉज नॉट वेल. ओके चिल्ड्रन. दिस वॉज ऑन 21 मई. तो अब ये कौन था, 21 मई को ये चीज़ें चल रही थी, राइट. By that time, he had already been through several unsuccessful operations. Who was been, और by 21st May जो उसके सर्जरीज थी, they were unsuccessful. They were not successful. Now he was back in hospital to undergo a surgical procedure that was intended to relieve the pressure on his brain. ठीक है. अब वो क्या बोल रहे हैं कि he had अनसक्सेसफुल ऑपरेशंस. और अब क्या होता है कि हॉस्पिटल वालों ने उसको बोला था दैट ही शुड हैव अ इंटेंडेड मीन देयर वाज अ प्लान टू रिलीव. ठीक है. टू रिलीव मीन्स टू रिड्यूस द प्रेशर दैट द ब्रेन वॉज फेसिंग, हिज ब्रेन वॉज फेसिंग. His head was shaved and the shape of the tumor was visible upon the bare scalp. अब वो बोल रहा है, अमिताभ घोष क्या बोल रहे हैं कि ही हैड, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑपरेशन करना पड़ रहा था, तो ही हैड शेव्ड, ठीक है, हिज हेड एंड शेप ऑफ द ट्यूमर. और जो शेप था किस चीज़ का, ट्यूमर का, वॉज विजिबल ऑन हिज बेयर स्कैल्प. बेयर स्कैल्प जो जब हम शेव कर देते तो कोई बाल ना होते हैं, राइट. इट इज़ बेयर. Its edges outlined by metal stutters. Okay, stutters. Okay, now his जो उसका बेयर, जो उसके क्या था, सर था चिल्ड्रन, it was bare. It did not have any help. It did not have any hair, and its edges outlined by metal stutchers. ठीक है. अब वो क्या था, stutchers are stitches. ठीक है. जो कि दो एरियाज़ को, जैसे उनका ऑपरेशन हुआ होगा तो उनको क्या करें, जैसे स्टेपल कर देते हैं ना, वैसी हैं ये. ठीक है. स्टिचेस होते हैं ताकि दो पार्ट्स को इक्वली ज्वाइन कर सकें. व्हेन इट वाज टाइम टू लीव द वार्ड, अ ब्लू यूनिफॉर्म हॉस्पिटल एस्कॉर्ट अराइव्ड विद अ व्हील चेयर. अब क्या हुआ चिल्ड्रन कि कौन अराइव करा, एक वार्ड बॉयज अराइव करें ताकि उसको व्हील चेयर पे लेके जाएं. शाहिद वेव्ड हिम अवे, डिक्लेयरिंग दैट ही वाज स्ट्रॉन्ग इनफ टू वॉक आउट ऑफ द हॉस्पिटल ऑन हिज ओन. तब शाहिद ने क्या करा, उसने उनको बोला कि नहीं, आई विल गो ऑन माई ओन. ओके, ठीक है चिल्ड्रन. ही सेड दैट ही, इसका मतलब क्या होता है कि ही डिड नॉट वॉन्ट एनीबडी टू शो दैट ही वॉज weak, and neither did he wanted to make himself weak. तो वो क्या दिखाना चाहता है, that he is very strong. तो उसने जो वार्ड बॉयज थे उनको बोला कि he will walk himself, but he was groggier. Groggier means weaker. Obviously he'll become weaker than he had thought, and his knees buckled after no more than a few steps. ठीक है. उसके बावजूद उसने बोला कि नहीं, कि मैं क्या हूँ, बकल्ड हूँ, मतलब मैं क्या हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ. बट क्योंकि इतनी ज़्यादा ऑपरेशंस हुए थे तो ही वॉज अनस्टेबल, राइट. देन ही हैड थॉट एंड हिज नीज बकल्ड. बकल्ड मीन्स बेंट. ठीक है. आफ्टर बकल्ड आफ्टर नो मोर देन अ फ्यू स्टेप, वो थोड़ी थोड़ी स्टेप्स के बाद उसके नीज बेंट होना शुरू हो रहे थे.
Iqbal went running off to bring back the wheelchair while the rest of us stood in the corridor holding him upright. फिर जो इकबाल उसका भाई था वो भाग के गया और व्हील चेयर लाया और उसके जो हम जो थे राइट ही टॉक्स अमिताभ सेज दैट वी पीपल हेल्ड हिम अपराइट एट दैट मोमेंट लीनिंग अगेंस्ट द चेयरफुल हॉस्पिटल वॉल अ काइंड ऑफ रप्चर डिसेंडेड ऑन शाहिद. अब क्या होता है रप्चर what is rupture, joy or happiness, बोले उस कंडीशन में भी एट दैट मोमेंट लीनिंग अगेंस्ट द चेयरफुल हॉस्पिटल वॉल. ठीक है चेयरलेस हॉस्पिटल वॉल. ठीक है चेयरलेस हॉस्पिटल वॉल के अगेंस्ट लीन करने के बाद भी अ काइंड ऑफ रप्चर मीन्स अ काइंड ऑफ जॉय केम came descended on Shahid. Okay, so when the came on Shahid. When the hospital orderly returned with the wheelchair, Shahid gave him a beaming smile and asked where he was from. तो जैसी एक वो लेकर वार्ड बॉय लेकर वो क्या आता है व्हील चेयर लेकर आता है तो ये उसको पूछता है विद अ ब्रॉड स्माइल ग्लीमिंग स्माइल पूछता है कि वेयर आर यू फ्रॉम. इक्वाडोर. ही सेज इक्वाडोर. द मैन सेड. तो मैम उस आदमी ने क्या बोला कि ही इज़ फ्रॉम इक्वाडोर. इक्वाडोर कहाँ है कंट्री इन साउथ अमेरिका राइट. तो कंट्री कहाँ है ये साउथ अमेरिका में. द मैन सेड एंड शाहिद क्लैप्ड हिज हैंड gleefully together. Spanish, he cried at the top of his voice. I always wanted to learn Spanish just to read Lorca. ठीक है अब वो क्या बोलता है कि अच्छा यू फ्रॉम इक्वाडोर ओके कंट्री विच इज़ इन साउथ अमेरिका राइट. और फिर वो बहुत खुश होता है. ही से स्पेनिश तुम स्पेनिश जानते हो और फिर वो बहुत ज़ोर से बोलता है कि आई वॉन्टेड टू लर्न स्पेनिश जस्ट टू रीड लोरका. ना हु वॉज लोरका. If you go at the end of the story, end of the page, Garcia Lorca is Spain's most deeply appreciated and highly revered poet and dramatist. तो he was a Spanish. तो वो बोलता है कि अच्छा तुम इक्वाडोर से हो तुम्हें तो स्पेनिश आती होगी बड़े मुझे भी पढ़ना है मुझे भी सीखना है ताकि मैं किसकी पोइट्री पढ़ सकूं लोरका की पोइट्री पढ़ और वो एक ड्रामेटिस्ट भी थे राइट. Now, Shahid's gregariousness had no limit. Gregariousness means habit of being with people, social ability जिनके fond of company of others, जो एक दूसरे के साथ रहना चाहते, had no limit. There was never an evening when there wasn't a party in his living room. मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं था जहाँ पर उसके घर में पार्टी ना हो ठीक है. एवरी डे लोग उसके पास आते ही आते थे एंड दे यूज टू हैव पार्टी. I love it that so many people are here. He told me once. और उन्होंने एक बार अमिताभ घोष को बताया था कि उनको बहुत पसंद है कि कई लोग उनके पास आते हैं यहाँ पर रहते हैं. I love it that people come and there's always food. I love the spirit of festivity. It means that I don't have time to be depressed. तो बोलता है कि मुझे पसंद है कि लोग यहाँ पर आए ठीक है यहाँ पर आए और ऐसा लगता है कि फेस्टिविटी सेलिब्रेशन हो अच्छा खाना हो ठीक है और यहाँ पर पीपल क्या करे पार्टी करे ठीक है. और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पर फूड हो राइट क्योंकि तब मुझे डिप्रेशन में जाने का कोई टाइम नहीं होता राइट बिकॉज पीपल आर हियर आई लव बीइंग विद देम दे हैव फूड वी हैव पार्टी राइट एंड देयर इज़ नो डिप्रेशन. हिज अपार्टमेंट वॉज अ स्पेशियस जिसमें क्या हो जगह हो राइट. अ लॉट ऑफ स्पेशियस मीन्स बिग हैविंग अ लॉट ऑफ स्पेस एंड एरी स्पिल्ट लेवल और बहुत ज़्यादा एरी भी था ऑन द 7th फ्लोर ऑफ द न्यूली रेनोवेटिव बिल्डिंग क्योंकि वो 7th फ्लोर में था तो एरी भी था. There was a cavernous study on the top floor. What is cavernous is huge study on the top floor and a wide terrace that provide magnificent view on Manhattan skyline. तो वो बोलता है कि there was a उसकी टॉप मोस्ट फ्लोर में क्या था स्टडी थी और
वाइड टेरेस, एक टेरेस था जिसमें बहुत सुंदर मैनहट्टन स्काईलाइन का था, और उसी के बगल में ईस्ट रिवर थी, राइट. सो यू कैन सी व्हाट वाज द सीन लाइक. माना कि ये रिवर है, राइट, दिस इज रिवर, और यहाँ पर बिल्डिंग्स थी बहुत सारी, राइट. सो जो शाहिद अली थे, ही से कि आई लव द बिल्डिंग्स. So these were the buildings, right, and this was the river, this was the river. तो ये व्यू उसके कहाँ का था, घर का था, right, घर से दिखता था. Okay, East River under the glittering lights of Manhattan, or under the glittering lights of Manhattan, right. Now the journey from the foyer means the entrance of the hall. ठीक है, फोयर किसको बोलते हैं, जहाँ पर एंट्रेंस होती है, किसी चीज़ की एंट्रेंस होती है, ठीक है. ऑफ शाहिद्स बिल्डिंग टू हिज डोर वॉज अ वॉयज बिटवीन कॉन्टिनेंट्स. दैट मीन्स जहाँ से उसका नीचे से उसके अपार्टमेंट तक, ठीक है, जहाँ उसका बिल्डिंग था, जहाँ उसके ऐसा लगता था बहुत, वॉयज मीन्स जर्नी थी कई कॉन्टिनेंट्स की. ऑन द वे अप टू द रिच फ्रेगन ऑफ रोगन जोश एंड हाक would invade the door. Door means unfriendly. Invade, occupy the door. ठीक है. अब क्या बोलते हैं कि जब हम उसके घर जाते थे ना, तो ऐसे लगता था कि हम डिफरेंट कॉन्टिनेंट में आ गए हैं, ठीक है. हमारी जर्नी है डिफरेंट कॉन्टिनेंट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी, ठीक है, गुड स्मेल ऑफ रोगन जोश एंड हाक. हाक जो ग्रीन वेजिटेबल से, ग्रीन स्पिनच से बनता है. इट्स अ काइंड ऑफ साग that is very famous in what do you call it, Kashmir. Okay, would invade occupied the unfriendly gray interior of the elevator. तो जो एलिवेटर से वो ऊपर जाते थे, फ्रेगनेंस स्मेल, ठीक है, जैसे वो वहाँ पर जाते थे बहुत ज़्यादा रोगन जोश और खाने की खुशबू आती थी. Against the background of the songs and musics, they were always echoing आउट ऑफ हिज अपार्टमेंट. और बैकग्राउंड में क्या था, ये खुशबू तो ऐसी थी, स्मेल तो ऐसी थी, और पीछे से लोगों की आवाज़ें, बातें करने की आवाज़ें, गानों की आवाज़ें जो कि एको करती थी, गूंजती थी फ्रॉम हिज अपार्टमेंट. इवन द रिंगिंग ऑफ द डोरबेल हैज़ द ऑडली म्यूजिक साउंड. और वो बोलता है कि इवन जो उसकी डोरबेल है उसमें भी क्या था, बहुत ऑडली साउंड थे, बहुत डिफरेंट साउंड थी, राइट. देन सडनली शाहिद suddenly Shahid would appear, flinging open the door, realizing a great cloud of heat into the frosty New York air. अब वो क्या बोल रहे हैं, वो ये बोलना चाह रहे हैं कि suddenly Shahid would open the door of his flat with a jerk. Smell of hing would come from his house into the cold air of New York. ठीक है, हींग is a kind of spice, right, जो हम खाने में डालते हैं. और जैसे ही उसका दरवाज़ा खुलता था तो पूरे एरिया में हींग की खुशबू आती थी. ओह हाउ नाइस, ही वुड क्राई क्लैपिंग हिज हैंड, हाउ नाइस दैट you've come to see your little Muslim means Muslim out here. तो वो क्या बोलता था, हाउ नाइस you've come here to see your friend Muslim, right. अब हमें इससे पता चलता है कि ही वॉज वेरी गुड एट कुकिंग फूड ऑल्सो, एंड राइट, बिकॉज he loved cooking food also, right. Invariably there would be some half dozen of people gathered inside. अब वो क्या बोल रहे हैं कि जैसे हम वहाँ पर देखते थे, उसके कमरों में देखते थे या उसके घर पे देखते थे, हाफ डजन, ठीक है, वहाँ पर लोग रहते ही रहते थे. पोएट्स, स्टूडेंट्स, राइटर्स, रिलेटिव्स. और कौन कौन रहते थे, पोएट्स रहते थे, स्टूडेंट्स थे, राइटर्स थे, एंड रिलेटिव्स थे. एंड इन द किचन समवन वुड ऑलवेज बी कुकिंग और मेकिंग टी. और किचन में कोई ना कोई क्या, या तो खाना बनाता रहता था या चाय बनती रहती थी. ऑलमोस्ट टू द वेरी एंड, even as his life was being consumed by the disease, he was the center of a perpetual carnival, an endless mela of talk, laughter, food, and of course poetry. तो वो बोल रहा है perpetual means continuous, even कि वो अपनी लाइफ के एंड पे था, ठीक है. तो
almost to the very end, even as his life was being consumed by the disease. मतलब वो डिजीज इतनी ज़्यादा स्प्रेड हो रही थी, ठीक है. ही वॉज द सेंटर ऑफ द कंटिन्यूस कार्निवल. कार्निवल जो ये गैदरिंग थी, ही वॉज द एपी सेंटर ऑफ इट. ही वॉज a मेन हेड. एंड एंडलेस मेला ऑफ टॉक. मेला इज अगेन अ इंडियन वर्ड. तो इज लाइक मेला होता है ना, इट इज़ अ फेयर, और ठीक है, ऑफ टॉक, laughter, food, and of course poetry. Okay. No matter how many people there were, Shahid was never so distracted as to lose track of the process of evening's meal. ठीक है. कितने भी लोग हो, शाहिद कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा था कि उसके किचन में बन रहा है, क्या मील बन रही है, अच्छा बनना चाहिए, बिकॉज ही लव्ड फूड, राइट. From time to time, he would interrupt himself to shout direction of whoever was in kitchen. Yes, now add dahi. एट दी दही नाउ. और कितने भी वो बिजी थे, कितने भी वो बातें करते, उनको खुशबू से पता चल जाती थी कि क्या बन रहा है, राइट. तो फिर वो ज़ोर से चिल्लाते थे, जैसे बात करते करते वो किचन में जो भी बनाता था उसको ज़ोर से चिल्लाते थे कि अब क्या करो, दही ऐड करो, राइट. इवन वेन हिज आई साइट्स वो फॉलोइंग, क्योंकि बीमारी की वजह से उनकी आई साइट्स में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे थे. ही कुड टेल फ्रॉम द स्मेल अलोन एग्जैक्टली विच स्टेज द रोगन जोश हैड रीच. तो इवन एट हिज स्मेल, ठीक है, वो बोल रहे कि जब वो स्मेल से पता लगाते थे कि रोगन जोश जो नॉनवेज था वो कितने टाइम तक क्या हो गया था, पक गया था, कितना टाइम हो रहा था. And when things went exactly as they should, he would sniff the air and cry out loud, "Ah, खाने का क्या महक है," right. So क्या होता था, when the smell was out, ठीक है, he would sniff जैसे ऐसे करते हैं ना, स्मेल करते हैं, cry out loud, और फिर वो जोर से चिल्लाकर बोलता, आह, खाने का क्या महक है, what is how good is the smell of the food. शायद वॉज लेजेंडरी. लेजेंडरी मीन्स फेमस, ठीक है, फ्रॉम हिज प्रोवेस मीन्स अबिलिटीज इन द किचन, ठीक है. इवन ही वॉज वेरी स्किलफुल on the food that was being cooked. Power. Prowess means ability in the kitchen, frequently spending days over the planning and preparation of dinner party. और he फ्रीक्वेंटली स्पेंड डेज कि पार्टीज़ में क्या बनना है, ठीक है, बिकॉज ही ऑल्सो लव्ड फूड. तो वो क्या चाहता था कि जो उसके मेहमान हो, दे शुड गेट ऑल्सो गुड फूड. इट वॉज थ्रू वन सच पार्टी गिवन वाइल ही वॉज इन एरिजोना दैट ही मेट जेम्स मिरल. अब वो किससे मिलते हैं, जेम्स मिरल से मिलते हैं, ठीक है, कहाँ पर, एरिजोना में. द पोएट हु वॉज टू रेडिकली ऑल्टर द डायरेक्शंस ऑफ हिज पोएट. तो वो बोल रहा है जिन्होंने क्या करा है, उसके पोएट्री को एक क्या करा है, न्यू डायरेक्शन चेंज करा था, ठीक है. एनकाउंटर मीन्स मीटिंग विद जेम्स मिल. द पोएट वॉज रेडिकली ऑल्टर मतलब चेंज करा है उसने. रेडिकली कम्प्लेक्सिटी, राइट, सॉरी, कंप्लीटली, right. Radical means completely change the direction of his poetry. It was after this encounter means meeting, that he began to experiment with strict metrical पैटर्न्स एंड वर्सेस फॉर्म्स. और जब क्या होता है चिल्ड्रन, जब ये जेम्स माइरल मिले, उनसे इंस्पिरेशन लेकर, ठीक है, उन्होंने क्या करा, ये चीज़ें उन्होंने अपनी पोइट्री का स्टाइल में चेंज लेके आए. जैसे कि एक मेट्रिकल पैटर्न्स मीन्स अ स्टाइल ऑफ पोएट्री, राइट, ठीक है. Then he says that no one had a greater influence on Shahid's poetry than James Mirrell. Indeed, in the poem in which he most explicitly prefigured his own death, prefigured giving an earlier indication of his own death, ठीक है. अब वो क्या बोलता है चिल्ड्रन, दैट उसके जब जेम्स मिलर से बात हुई, उनसे क्या हुई, दोस्ती हुई, उनसे वो इतना ज़्यादा प्रभावित हो गए थे कि ही हैड एन अर्ली इंडिकेशन ऑफ हिज डेथ. I dream I'm at the Ghat of the only word. He awarded the envoy to Mirrell. Shahid, shh, hush.
दिस इज़ मी जेम्स, द लव वन ऑलवेज लीव्स। तो वो क्या बोल रहे हैं, हाँ, उन्होंने फिर उसके बाद क्या लिखी थी, आई ड्रीम आई एम एट द घाट ऑफ द ओनली रिवर, ही अवॉर्डेड द इन्वॉय टू मिरल, दैट मीन्स अ मैसेजर और रिप्रेजेंटेड स्पेशली ऑन अ डिप्लोमेटिक विजन। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है कि जब वो शाहिद had imagined about his death, so in the poems James Mill was a messenger who talked to him about death. तो इन दैट पोएम जेम्स कन्वेड द मैसेज दैट गुड पीपल ऑलवेज लीव दिस वर्ल्ड, है ना। तो वो बोलता नहीं, शाहिद दिस इज़ मी जेम्स, द लव वन ऑलवेज लीव, मतलब जो बहुत ज़्यादा लोग बहुत जिनको बहुत पसंद करते हैं वो जल्दी छोड़ के चले जाते हैं, राइट। नाउ जेम्स प्लेस्ड ग्रेट स्टोर ऑन authenticity and expertitude in cooking and would tolerate no deviation from traditional methods and recipes for those who took shortcuts. So Nashad plays great store in authenticity and exactitude. Exactitude means the quality of being very accurate. Okay, exactitude, accuracy in cooking, and would tolerate no deviation. No deviation मतलब वो कोई भी कैसे भी चीज़ें डेविएट नहीं कर, मतलब कोई भी चीज़ें टॉलरेट नहीं करता था फ्रॉम ट्रेडिशनल मेथड्स और रेसिपीज़। ठीक है, फ्रॉम दोज हु टुक शॉर्टकट, तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि लोग क्या करें, इस चीज़ में शॉर्टकट लें। And for those who only took shortcut, he had only pity, right? He had a special passion for the food of his region, one variant of in particular, Kashmiri food in the Pandit style. I asked him once why this was so important to him, and he explained that it was because of a recurrent dream in which all the Pandits had vanished from the valley of Kashmir and that their food had become extinct. This was a nightmare that haunted him, and he returned to it again and again in his conversation and his poetry. तो वो सिंपल ये बोलता है कि, तो उसने बोला कि तुम्हें इतनी फूड, अपने फूड की क्या ज़रूरत है, यू आर इन आउटसाइड इंडिया एंड तुम ना कश्मीर के लिए और इतना ऑथेंटिक क्यों हो, तुम इसके लिए पर्टिकुलर क्यों हो, रिलीजन के फूड के ऊपर पर्टिकुलर क्यों हो। तो हीज़ है क्योंकि जो कश्मीरी फूड है वो इज़ द इन दी पंडित स्टाइल। सो ही आस्ट, तो वो बोलता है कि बिकॉज ऑफ रिकरेंट ड्रीम, रिकरेंट मीन्स विच कम्स अगेन एंड अगेन, उस पे उसका एक ड्रीम है इन विच ऑल द पंडित्स हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वैली ऑफ कश्मीर, और सारे के सारे जो पंडित्स थे कश्मीर के, दे हैड वैनिश्ड। ठीक है, एंड देयर फूड हैड बिकम एक्सटेंट, तो उनका जो स्टाइल ऑफ मेकिंग द फूड, द ट्रेडिशनल मेकिंग ऑफ फूड वॉज हैड वैनिश्ड अवे, वैनिश मतलब ख़त्म होना। दिस वॉज अ नाइट मेयर, और वो बोलता है ये क्या था, मेरे लिए एक नाइट मेयर था। ठीक है, दैट हॉन्टेड हिम एंड ही रिटर्न टू इट अगेन एंड अगेन। ठीक है, और वो बोलते हैं एंड ही रिटर्न हिम टू इन अगेन एंड अगेन इन हिज कॉन्वर्सेशन एंड हिज पोइट्री, और उसकी कॉन्वर्सेशन को ले लो या पोइट्री को लेके जाओ, तो ये चीज़ें वो बार बार अपनी पोइट्री में या अपने बातों में वो कश्मीर और उनके फूड के बारे में बार बार बातें करते थे, बिकॉज ही थॉट दैट पंडित, जो पंडित कश्मीरी पंडित के साथ हुआ था ना, कि दे वर टेकन अवे, राइट, दे वर किल्ड एंड दे वर थ्रोन आउट ऑफ द प्लेसेस, राइट। तो उनका जो ऑथेंटिक फूड है वो हमेशा सेव होना चाहिए। ओके चिल्ड्रन, I'll explain it to you in the next video. Please like, share and comment.